All right, I take you now to Bihar because a four-member delegation of the BPSC aspirants have reached the governor's house to submit a memorandum. This is, remember, important because at a time like this, there has been lathi charge on the students. These are aspirants of the public service examination in Bihar. They're asking for the re-examination. They're alleging irregularities in the preliminary examination itself. And now they're meeting the governor. And will submit the memorandum. It's a four-member that has been appointed. They have now decided to go ahead and meet the governor. Interestingly, look at the posters. They say this is not Bihar public service examination. This is a British public service examination. The manner in which it is being conducted, alleging irregularities, discrimination, asking for re-examination of the paper. Remember that the past few days, and we'll play out those visuals also for you, there's been a full-on water cannon lathi charge on the aspirants. Prashant Kishore was even booked for allegedly provoking that they must go and indulge in these kind of protests that lead to a violence-like situation. That's the visual of the water cannon, lathi charge as well. There has been FIR that has been lodged against, and it looks like against hundreds that have been mentioned in the FIR. The police case that has been filed against the election strategist, many others. These are student protesters who are demanding the cancellation of the BPSC examination. So at Patna's Gandhi Maidan, where these protests were organized, Rohit Singh is joining me this morning for the latest on that. Rohit, tell us more about the delegation that is meeting the governor. What are their demands and what precisely are they looking at as a strategy? Well, Pooja, yes, politics is being played out here, especially after what happened yesterday at Gandhi Maidan when thousands of aspirants were caned and also water cannon was used in this biting winter season. And today we are seeing that Pappu Yadav, the MP, met governor short while back, submitted a memorandum in this entire case, and now a group of four-member delegation have also come here to meet governor on this entire issue. Let's get in a word from them as to what are their demands, why have they come to meet the governor. आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, कहाँ से आप हैं? वैशाली। वैशाली से। हाँ। कल की घटना पहले हुई है, कुछ लोगों ने, छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने इसको मिसलीड कर दिया या जो भी कर दिया, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना ये है कि ना उन्होंने हमें कहा था कि ना हम रहेंगे आपके साथ, वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होगी, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज हुई, तो ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहला है। ठीक है, दूसरा ये है कि उन्होंने, प्रशासन ने क्या बोला हमसे, मतलब न्यूज में आ रहा है ऐसा चीज कि प्रशासन सामने से स्टेटमेंट दे रही कि हमने ना भीड़ को शांत करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। आप बताइए सर, ये हल्का लाठीचार्ज था? हाथ टूटना, पैर टूटना, हॉस्पिटलाइज होना हल्का लाठीचार्ज है? ये स्टेटमेंट तो उनका यहीं पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और तीसरा ये है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे ना, तो शांतिपूर्ण तरीके से करना लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार होता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग गर्दनी बाग में तो 10 दिन से तो किसी ने कुछ नहीं किया, अचानक गांधी मैदान जाके और ये पूरा प्रोटेस्ट मार्च निकालना सीएम हाउस तक, ये सब किसने, क्यों हुआ? ये क्या बोलते हैं, मैं नाम नहीं ओपन करूंगी, लेकिन हमें आया गया था, बोला गया था कि हम आपके साथ हैं, आप वहां से, वहां पे क्या बोलते हैं, गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है वहां से हम क्या करेंगे, इसको आवाहन करेंगे। ये तो परसों प्रशांत किशोर ने आप लोगों से मिलकर कहा, लेकिन क्या बोलते हैं, जब हमारी भीड़ इकट्ठी हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अनियंत्रित हो गया, मतलब कि वो वहां से चले गए, लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया। हाँ, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है, क्या हुआ? सर, घेरे के कारण ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन जो है सभी लोगों का, जैसे हमारे जो नेता थे, जो हमारे रामांशु सर थे और ये वही पीके सर थे, तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि चूंकि हम लोग का प्रतिमा के पास गांधी मैदान जो है, बापू की प्रतिमा के पास जो था छात्र संसद लगाया गया था सर, वो छात्रों की बातें सुनी जा रही थी और ये छात्र कब ये मानना था, बहुत सारे छात्र ये बोलते थे कि हम मार्च निकालेंगे, है ना, तो एक निर्णय लिया गया कि क्या मार्च निकालना चाहिए। तो कहीं चूंकि बहुत सारे छात्र आ जाता है ना, कि बहुत सारे छात्र जो है थोड़ा सा हिंसक टाइप के भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला है। तो मार्च निकाल, चूंकि मैं आंसर पे था तो मैं वहीं से जस्ट मैं गया और बापू प्रतिमा का दर्शन किया और जो भी बात था वहाँ किया और मैं पुनः वापस आ गया। लेकिन ऐसा माना गया कि सर वहाँ पे जैसे ही शांति, वो जेपी गोलंबर, शायद में भी जेपी गोलंबर था सर, जेपी गोलंबर पर जब लोग बैठे थे तो
प्रशासन के द्वारा काफी बर्बरता पूर्वक मारा गया। इवन उनको मारा गया सर जिस लड़की का पहले लाठीचार्ज में पैर टूटा था, फिर से दोबारा मारा गया बहुत बर्बरता पूर्वक। सर एक और लड़का आप देखेंगे कि बहुत सारा वायरल भी हो रहा है, मतलब शॉर्ट खोल खोल के भी मारा गया। पीके को लेकर नाराजगी क्यों है? जी क्योंकि नाराजगी इसलिए कि पीके सर 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ चलेंगे और लाठीचार्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर लाठीचार्ज होती है तो पहली लाठीचार्ज मेरे पे होगी। लेकिन कल जो लाठीचार्ज हुई सब पीके सर का कहीं ना कहीं, अब जो चीज़ भी हो, अब मुझे नहीं पता कि क्या सोच के वो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत सर वहाँ नहीं रहे। लाठीचार्ज के टाइम में वो चले गए, फिर से पुनः गांधी मैदान बापू प्रतिमा के नीचे चले गए। उनके नहीं रहने के कारण शायद छात्रों में ये है कि उन्होंने कहा था कि पहली लाठी मुझे लगेगी, लेकिन शायद वो लाठीचार्ज। और आप खाली पैर आए हुए हैं यहाँ गवर्नर से मिलने के लिए, चप्पल जूते कहाँ हैं आपके, क्या हुआ? कल के भगदड़ में चप्पल टूट गया। और देखिए सर, बात ये है कि यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र में जो बार बार बोला जा रहा है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, तो बस एक बात बताइएगा, हम अगर किसी से मांग रख रहे हैं तो वो कौन है? ठीक है, अब हम भले ही मांग कर रहे हैं एक स्वतंत्र निकाय जो बीपीएससी है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अछूता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो मतलब जो सत्ता पक्ष है, ठीक है, उनका दबाव होता है उसके ऊपर। अब जब हमारी बात बीपीएससी सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो हमारा मांग किन से होगा? आप लोग क्या आप चाहते हैं, फाइनल बताइए क्या चाहते हैं? री एग्जामिनेशन, ठीक है, और सबसे बड़ी किससे बात, बात करेंगे आप लोग? आप लोग को तो कहा जा रहा है बीपीएससी चेयरमैन से बात कीजिए। जी बीपीएससी चेयरमैन से बात करते हैं सर, लेकिन बात ये है कि वो मतलब इतना ज्यादा मतलब मिसट्रस्ट हो चुका है, इतना ज्यादा, क्योंकि किसकी बात सुनेंगे, किससे बात करना चाह रहे हैं? सर मैं All right, so Rohit, you keep getting us these voices consistently of the students. Look at what is the situation on the ground.